یسوع کی گرفتاری۔ بچوں، ابھی پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ یسوع کے شاگرد ہماری ہی طرح گھمنڈی اور غسیلے تھے۔ جب یسوع نے انہیں بتایا کہ آج رات اسے پکڑوا دیا جائے گا تو ایسے میں بھی وہ یہی تکرار کیے گئے کہ کس کا رتبہ سب سے بڑا ہے اور کون یسوع کی دائیں اور کون بائیں طرف بیٹھے گا۔ یسوع جانتا تھا کہ اب اس کا پکڑوایا جانا قریب ہے، وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے شاگردوں کو ایک بار پھر آنے والے حالات کی خبر دی تاکہ وہ اطمینان اور تسلی رکھیں۔ جب حالات کی تلخیاں انتہا کو پہنچ جائیں تو انہیں یاد رہے کہ یہ سب واقعات خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ خوف یا اداسی کی تو کوئی بات نہیں۔ ایسے وقت شیطان یہودا کے دل و دماغ پر اپنی گرفت جما چکا تھا اور یہودا ٹھان چکا تھا کہ یسوع کی ہر تنبیہ کو نظر انداز کر کے سردار کاہن سے کیا ہوا عہد نبھانا ہے۔ شاگردوں کی شیخی، یوحنا 13 باب 31 سے 33 آیت۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا، اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں۔ لوکا 22 باب 16 آیت۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اپنے جلال پانے کا تذکرہ کیا۔ بچوں، کیا آپ نے محسوس کیا یسوع جب بھی اپنی تکلیفوں کا ذکر کرتا تو انہیں اپنے جلال کا سبب قرار دیتا تھا؟ یہاں تک کہ جب وہ پہاڑ پر موسیٰ اور ایلیاہ کے ساتھ تھا تو یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا۔ بچوں، یسوع کی نظر میں دنیاوی باتوں کی اہمیت نہیں تھی، بلکہ ہر بات میں اس کے پیش نظر ابدیت کا پہلو نمایاں رہتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں زمینی زندگی میں یسوع کو پکڑوایا گیا اور اس نے بڑی مصیبتیں جی لیں، مگر یسوع کی نظر میں انسان کی خدا کے ساتھ وہ ابدی صلح اہم تھی جس کی اس نے تکمیل کر دی۔ یسوع جانتا تھا دنیاوی زندگی میں یہ اس کا شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا ہے، اور آئندہ اکٹھے کھانے کا موقع آسمانی زندگی میں ہی ملے گا۔ مگر شاگرد یہ بات نہیں سمجھ پائے۔ متی 26 باب 31 آیت۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ مرکز 14 باب 28 آیت۔ مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ بچوں، یسوع جانتا تھا آج کی رات شاگرد ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے استاد کو گرفتار ہوتا اور مار کھاتا ہوا دیکھیں گے۔ وہ خوف زدہ ہو جائیں گے، کچھ اس طرح کے ایمان تک گنوا بیٹھیں گے۔ وہ یسوع کے متعلق شکوک و شبہات میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ اگر وہ مسیحا ہی تھا تو پھر دشمنوں کے سامنے اپنا تحفظ کیوں نہ کر سکا؟ یسوع جانتا تھا ان کا یقین اور ایمان لڑکھڑانے کو ہے۔ چنانچہ اس نے شاگردوں کو آگاہ کر دیا کہ اگرچہ اسے موت کے حوالہ کر دیا جائے گا مگر وہ پھر سے جی اٹھے گا۔
और गलील में फिर उनसे आन मिलेगा। पतरस को खुद पर इतना भरोसा था कि उसने यीशु की बात को संजीदगी से लिया ही नहीं कि तुम सब ठोकर खाओगे। बच्चों, बाइबल के मुताबिक ठोकर खाने का मतलब ये नहीं कि आप राह में कहीं जाते गिर पड़े, बल्कि इसका मतलब है यीशु की पैरवी में मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते यकीन, हौसला, उम्मीद और ईमान खो बैठना। मरकस 14 बाब 29 से 31 आयत। पतरस ने उससे कहा, वो सब ठोकर खाएं, लेकिन मैं ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन उसने बहुत जोर देकर कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। इसी तरह और सबने भी कहा। बच्चों, यीशु ने कहा सब शागिर्द उसकी गिरफ्तारी और मारपीट की वजह से ठोकर खाएंगे। पतरस समझता था ऐसा तो कभी ना होगा। उसे यकीन था कि वो तो इतनी लगन और पुख्तगी से यीशु की तकलीद करता है जिस पर कभी आंच आ ही नहीं सकती। यीशु की मोहब्बत की खातिर अगर मरना भी पड़े तो वो कभी पीछे हटने का तसव्वुर तक नहीं कर सकता। बच्चों, पतरस का ईमान कितना मजबूत था। बाकी सब शागिर्द भी तो यही दावे करते रहे। उनके लिए यीशु से फरेबकारी या उससे बिछड़ जाने का तसव्वुर तक महाल था। उनके ख्याल में मौत भी उन्हें यीशु से जुदा नहीं कर सकती थी। मगर यीशु जानता था पतरस उसे पहचानने तक से इनकार कर देगा। वो जानता था मुर्ग की दूसरी बांग से पहले पतरस 3 बार उसकी पहचान से इनकार करेगा। बच्चों, यीशु जानता है हमें कैसी मुश्किलात से साबका पड़ने वाला है। वो ये भी जानता है कि हमारे हौसले जवाब दे जाएंगे। चुनांचे इससे पहले के सलीब पर चढ़ाया जाता उसने पतरस की मोहब्बत को उभारा, क्योंकि यीशु खूब जानता था उस रात की सुबह से पहले ही पतरस पुकार उठेगा। वो तो यीशु को जानता तक नहीं। अरे ये क्या वाकई पतरस ने इनकार कर दिया? उसने तो कहा था अगर मरना भी पड़ा वो यीशु के साथ जान देगा। इस पर भी यीशु ने कैसे कह दिया? पतरस चंद घड़ियों में ही हौसला हार बैठेगा और उसे पहचानने तक से इनकार कर देगा। बच्चों, यीशु हमारे खौफ और वसवसे खूब जानता है। चाहे हम खुदा की मोहब्बत का दम भरते रहें और यीशु की खातिर किसी भी कुर्बानी के लिए खुद को तैयार भी रखें, मगर हालात के बिगड़ते ही हम खुद को मसीही मानने तक से इनकार कर देते हैं। पतरस की कमजोरी से यीशु खूब वाकिफ था। साथ ही वो ये भी जानता था कि जब पतरस रूहुल कुदस पा लेगा तो यकसर नया इंसान बन जाएगा। चुनांचे यीशु ने पतरस को हौसला दिया। लूका 22 बाब 31 से 32 आयत। शमऊन, शमऊन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। बच्चों, ये जानते हुए भी कि हम हमेशा यीशु की दिल आजारी ही करते हैं, वो फिर भी कभी हमसे मायूस नहीं होता। जब तक हम उसकी राहों पे चले जाते और इधर उधर भटकते नहीं, उसकी ताकत हमारी कमजोरियां दूर करती रहती है। यीशु ये भी जानता है कि रूहुल कुदस हमारा मददगार रहेगा और यीशु की तरह शागिर्दों के ईमान की परवरिश करता रहेगा।
चुनाचे यसू ने पतरस की हिम्मत बढ़ाई और कहा, जब उसका ईमान यीशु की ताकत पाले तो उनकी मदद करे जो उसकी तरह ईमान में कमजोरी पाते हैं। यसू ये भी जानता था कि हम लोग जो यसू से प्यार करते हैं अपनी फितरी कमजोरियों के साथ साथ हर वक्त शैतान की जद में भी रहते हैं। शैतान हमें लड़वाने और आपस की नफरत सिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। यही वजह है कि मुख्तलिफ कलीसियाएं बाहमी नफरत और इंतशार का शिकार हैं। बच्चों, अगर हर कोई मुंह बसोर ले, दूसरों की मदद में हिचकिचाए और बात तक करना छोड़ दे, हर कोई अपनी जद्दोजहद में तन्हा रह जाए तो सारे काम बिगड़ते जाएंगे और कामयाबी रूठ जाएगी। ये अंदाज कलीसियाओं को मिटा डालेगा। कोई ऐसा रहेगा ही नहीं कि खुदा की खिदमत करे और निजात की खुशखबरी दूसरों को सुनाए। चुनांचे दुनिया से रुखसती से पहले यसू ने शागिर्दों को बाहमी मोहब्बत का दरस दिया। अपने लोगों को यकजा रखने और शैतान के हथकंडों से बचाए रखने की खातिर बाप के आगे हमारे लिए दुआ की। रुखसती से पहले यसू की दुआ, यूहन्ना 17 बाब 11 आयत। मैं आगे को दुनिया में ना हूँगा, मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ। ऐ कुद्दूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह एक हों। यूहन्ना 17 बाब 15 आयत। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। यूहन्ना 17 बाब 20 से 21 आयत। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों। यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हों, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। यूहन्ना 17 बाब 23 आयत। मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं, और दुनिया जाने के तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। फसा के खाने के दौरान यसू का अंदाज ऐसे बेकरार शख्स जैसा था जो जुदाई से पहले अपने प्यारों को नहायत अहम बातें समझा रहा हो। बच्चों, यसू की रुखसती बिल्कुल करीब थी। उसने शागिर्दों को आसमानी बाप के हाथ में सौंपा। वो क्या चीजें थीं जो शागिर्दों के लिए यीशु ने बाप से मांगी? नंबर 1, उसने बाप से दुआ की कि ईमान रखने वाले हर शख्स की हिफाजत फरमा। वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। नंबर 2, यसू पर ईमान रखने वालों की उस शरीर से हिफाजत कर। नंबर 3, वो भी एक हों, जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। नंबर 4, ईमान रखने वाले जान ले जिस तरह तूने ए आसमानी बाप मुझसे मोहब्बत रखी, उनसे भी वैसी ही मोहब्बत रखता है। बच्चों, हमारे लिए यसू की दुआ का सबसे अहम हिस्सा ये था कि हम एक होकर रहें। एक होकर रहने का मतलब है आसमानी बाप, यसू और सब ईमान रखने वाले आपस में लिपट जाएं। यानी ऐसे मिल जाएं कि फिर कभी बिछड़ ना पाएं। बच्चों, यसू हमें अपने साथ एक करना चाहता है। एक तो मोहब्बत ही कर सकती है।
हमें एक हो जाने के लिए मोहब्बत का दामन थामना होगा। यानी खुदा को साथ शामिल करना होगा। जब हम एक हो जाएंगे तो खुदा खुशबू की तरह हमारे वजूद में बसकर इसे महका देगा। जब कलीसियाएं और उनके लोग बाहम एक हो जाएंगे तो यकजाई की मोहब्बत भरी खुशबू दूसरे लोगों को भी खींच लाएगी। बिल्कुल ताजा रोटी की इश्तिहा अंगेज खुशबू की तरह। तब लोग पूछेंगे, आप इतने मसरूर क्यों हैं? आखिर आप लड़ते झगड़ते क्यों नहीं? दूसरों की बद क्यों नहीं उड़ाते? एक दूसरे की मदद कैसे किए चले जा रहे हैं? दूसरों की चीरा दस्तियों पर उन्हें माफ कैसे कर देते हैं? वगैरह वगैरह। तब हम उनसे कह सकते हैं, ये सब यीशु की मोहब्बत और बाप की मौजूदगी का सिला है कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा पाया। जब मोहब्बत के सारे रंग इकट्ठे हो गए तो हम एक कलीसिया कहलाए जिसमें यीशु की खुशबू बसी है। बात यूं है, आप उम्दा बिस्किट बनाना चाहते हो, मक्खन, चीनी, मैदा के साथ आपको उसमें खुशबू के लिए वनीला भी डालना पड़ेगा। इन सब चीजों को खूब अच्छी तरह आपस में घोटना पड़ेगा, तब कहीं उम्दा बिस्किट बन पाएंगे कि हर किसी का चखने को जी चाहे। बच्चों, आप किस कमरे में ठहरना पसंद करेंगे जिसमें जुराबों की बदबू बसी हो? नहीं। फूलों की महक? जी। बिल्कुल दुरुस्त। हर कोई यही चाहता है, खुशबुओं भरे घर में रहे। यीशु चाहता है हम एक दूसरे से प्यार करें और एक हो जाएं, क्योंकि यही वो राज है जिससे घर में खुशबुएं बसाई जा सकती हैं। ताहम यीशु जानता है कि शैतान को हमारे एक हो जाने से नफरत और अदावत है, और वो हर दम हमें मतलब परस्ती के सबक पढ़ाता, एक दूसरे पर बेतमादी और हर किसी की भद उड़ाने के गुर सिखाता रहता है, ताकि खुदा की मोहब्बत हमारे वजूद में बसेरा ना करे। एक ऐसी कलीसिया जिसमें खुदा की मोहब्बत ना हो, उसमें रंग रूप या खुशबू की महकार कहाँ से आएगी? लोग ऐसी कलीसिया के करीब भी ना फटकेंगे और ना ही मोहब्बत के खालिक यीशु को जान पाएंगे। इसीलिए यीशु ने बाप से खास तौर पर अपने ईमान रखने वालों के लिए दुआ मांगी कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। बच्चों, जब यीशु दुआ कर चुका और शागिर्दों के साथ गीत गा लिए तो कोहे जैतून की तरफ चला गया। ये वो जगह थी जहाँ यीशु और उसके शागिर्द अक्सर दुआ के लिए जाते। गतसमनी के मुकाम पर दुआ, मत्ती 26 बाब 30 आयत। फिर वो गीत गाकर बाहिर जैतून के पहाड़ पर गए। मत्ती 26 बाब 36 से 41 आयत। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जबदी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो।
रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। मत्ती 26 बाब 42 आयत। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। मत्ती 26 बाब 43 आयत। और आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। लूका 22 बाब 41 से 44 आयत। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा। और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। मत्ती 26 बाब 45 से 46 आयत। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनहगारों के हवाला किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। बच्चों, अगरचे यसू खुदा का बेटा है, फिर भी उसने इंसानी रूप में हमारी खातिर जान दे दी। उसने इंसानी बदन में जन्म लिया और हमारे जैसे महसूसात पाए, यानी हमारी ही तरह दर्द का एहसास, डर, खौफ और थकावट वगैरह। इंसानी बदन की फितरी कमजोरियों की वजह से यसू नहीं चाहता था कि सलीब के दुख उठाए, मगर यसू खुदा से प्यार करता है। वो ना चाहते हुए भी खुदा की रजा को अपने खौफ पर फोकियत देता रहा। चुनाचे यसू ने बाप से कुव्वत पाने को दुआ का सिलसिला जारी रखा। बच्चों, अपने दुख की बेताब घड़ियों में यसू चाहता था कोई दुआ में उसके साथ रहे, मगर शागिर्द उसकी बेकरारी ना जान पाए और सोते रहे। कई बार की कोशिश के बावजूद यसू उन्हें बेदार नहीं कर सका। ऐसे में यहूदा, उसे पकड़वाने वाला आदम का, उसके साथ वो सब लोग भी थे जो यसू को गिरफ्तार करने आए थे। यहूदा ने यसू का बोसा लिया। मरकस 14 बाब 43 से 44 आयत। वो ये कह ही रहा था कि फिलफोर यहूदा, जो उन 12 में से था, और उसके साथ एक भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए सरदार काहनों और फकीहों और बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वो ही है, उससे पकड़कर हिफाजत से ले जाना। मत्ती 26 बाब 49 आयत। और फौरन उसने यसू के पास आकर कहा, ए रबी, सलाम। और उसके बोसे लिए। लूका 22 बाब 48 आयत। यसू ने उससे कहा, ए यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? मत्ती 26 बाब 50 आयत। यसू ने उससे कहा, मियाँ, जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यसू पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया।
बच्चों, यहूदा तो वाकई यसू को पकड़वाने लोगों को ले आया। और सितम जरीफी तो देखिए, यीशु की निशानदही के लिए बोसा को निशान के तौर पर रखा। बच्चों, अगर आप यसू की जगह होते, क्या बहुत ही दुखी ना हो जाते? आपके प्यारे शागिर्द ने आपको पकड़वा दिया होता। वो तो मोहब्बत और अकीदत के जज्बों की आड़ में धोखे से पकड़वाने आया था। तब यसू ने कहा, मियाँ, जिस काम को आया है वो कर ले। ऐसे में यीशु के शागिर्दों को होश आई और उन्होंने बौखलाकर अपने उस्ताद को बचाने की कोशिश की। लूका 22 बाब 49 से 54 आयत। जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, ए खुदावंद, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर कफायत करो। और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा? मगर वो नविश्ते कि यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे। बच्चों, यीशु नहीं चाहता था कि उसके शागिर्द जबरो तशद्दुद की राह से मसला का हल करें। यसू ने कहा, वो बाप से कहकर अपनी हिफाजत की खातिर फरिश्तों के 12 तुमन मंगवा सकता था। ये शागिर्दों की तलवार की काट और ताकतों कुव्वत में कहीं बढ़कर होते, मगर इस तरह खुदा की तरफ से वो सारी पेशन गोइयां जो नबियों की जुबानी की गई अधूरी रह जाती। मतलब ये हुआ कि मसीह हालात के जिस दायरे से गुजर रहा था वो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक खुदा के अबदी मंसूबा में शामिल और उसके वादों की तकमील का एक तसलसल था। मत्ती 26 बाब 55 से 56 आयत। उसी वक्त यसू ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। बच्चों, इंसानी नुक्ता निगाह से यसू को एक बागी की तरह तलवार के बल पर गिरफ्तार कर लिया गया, मगर खुदा की नजर में यसू इंसान की नजात के मंसूबा को कदम ब कदम आगे ले जा रहा था। बच्चों, यसू ने शागिर्दों से कहा था, तुम सब इसी रात प्रागंदा हो जाओगे। यसू की गिरफ्तारी के बाद ऐन वही कुछ हुआ। वो सब यसू को छोड़कर भाग गए। पतरस यसू से ना आशना हो गया। लूका 22 बाब 54 से 56 आयत। फिर वो उसे पकड़कर ले चले और सरदार काहन के घर में ले गए और पतरस फासला पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सेहन के बीच में आग जलाई और मिलकर बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, यह भी उसके साथ था। मरकस 14 बाब 68 आयत। उसने इनकार किया और कहा कि मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ कि तू क्या कहती है। फिर वो बाहर डियोड़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। मत्ती 26 बाब 71 से 74 आयत। और जब वो डियोड़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा और जो वहां थे उनसे कहा,
ये भी यसू नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फिलफोर मुरग ने बांग दी। लोका 22 बाब 61 से 62 आयत। और खुदावंद ने फिर कर पतरस की तरफ देखा और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उससे कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। बच्चों, यीशु आने वाले हालात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ होता है। हमारी सरकशी हो, नाकामियां हो कमजोरियां हो, या खुदा से मुंह मोड़ लेना, वो सब कुछ पहले से जानता है। इसीलिए यीशु ने पतरस से कहा था, वो उसके लिए दुआ करेगा और वो यीशु पर ईमान नहीं खोएगा। क्योंकि यीशु जानता था जब पतरस को अपने ईमान में कमजोरी का पहलू मालूम हो जाएगा, वो जान लेगा कि खुद को जितना दलेर समझता रहा नहीं है, तो उसके लिए ईमान पर कायम रहना दुश्वार हो जाएगा। खुद पर एतमाद कायम नहीं रहेगा, तो शर्मिंदगी सर उठाकर चलने नहीं देगी। चुनाचे यीशु ने पतरस को खास तौर पर ये बात बताई कि शैतान तो चाहता ही यही है कि शागिर्द अपनी जात में बेएतमादी पाएं, लड़खड़ाएं, और यसू से पहलू नहीं कर ले। लेकिन यीशु ने सब शागिर्दों के हक में दुआ की। उसने अपनी राहों पे चलने वाले हर छोटे बच्चे तक के लिए खुदा से दुआ की कि खुदा उसे ताकत और हिम्मत दे, कहीं वो कमजोरी में अपना ईमान ना गवा बैठे। चुनाचे बच्चों, यीशु के लिए ये एहसास बहुत ही खुशकुन होता है कि हर कोई उसके पास आए और उसी से वाबस्ता कहलाए, चाहे आप गुनाह कर भी बैठे। यीशु की यही ख्वाहिश होती है कि आप उसके पास आएं, उससे दुआ मांगें। वो आपको बख्श भी देगा और गुनाहों पर काबू पाने की मद में आपकी मदद भी करेगा। जब आप अपने गुनाहों की वजह से खुद को यीशु की शागिर्दी के अहल न समझते हुए उससे मुंह मोड़ कर चल दें, तो ऐसे में शैतान खुशी से नाचने लगता है। टन 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 टन। आए यहूदा पर निगाह डालते हैं जिसने यीशु को पकड़वाया था। कमजोर था, गुनाह में गिर पड़ा, जानता था जो किया गलत है, मगर माना नहीं, तौबा नहीं की, हमाकत की हदें पार कर गया। आए देखते हैं हमाकत उसे कहाँ ले गई। उस रात यीशु पर इल्जाम लगाए जाते रहे, फर्दे जुर्म आयद की गई और सजाए मौत भी सुना दी गई। यीशु को पकड़वाने वाले यहूदा ने वो 30 रुपए वसूल पाए। क्या आपके ख्याल में उसने खुशी पा ली? जब उसने यीशु को पकड़वाया था तो पकड़ने वालों को यहाँ तक कहा कि उसे पकड़कर हिफाजत से ले जाना। यहूदा ने अपने हाथों फांसी ले ली। मत्ती 27 बाब 3 से 10 आयत। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया। हो। और वो 30 रुपए सरदार काहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया, बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा,
हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेसियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक़्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए। उसकी कीमत बाज बनी इसराइल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। बच्चों, ये रकम यहूदा को खुशी न दे सकी। न सिर्फ ये कि वो इन 30 रुपयों से कोई खुशी ना खरीद सका, बल्कि जाकर अपने हाथों फंदे में लटक गया। वो जानता था कि उसने एक बेगुनाह को धोखे से पकड़वाया और गलत हरकत की है। जानता था उससे गुनाह सरजद हुआ, मगर शैतान ने उसके दिल में घर कर लिया। वो इतना सरकश हो गया कि यीशु से माफी तक ना मांगी। इसके बरअक्स गया और जाकर खुदकुशी कर ली। फंदा लेकर मर जाना बेहतर जाना। यहूदा 3.5 बरस यीशु की राहों पे चलता रहा था। वो बारहा यीशु की ज़बानी सुन चुका था। इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, मगर उसने आजिज़ी अपनाकर यीशु से माफी मांगने की बजाय गले में फंदा डालकर मर जाना बेहतर जाना। इस तरह वो अपने गुनाह और उनकी सजा का बोझ उठाए चला गया। यीशु ने इसीलिए कहा था, अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। सिर्फ यीशु ही तो है जिसे गुनाह माफ कर देने का इख्तियार है। यहूदा फिर भी उस बात पर तैयार ना हुआ। चुनाचे यहूदा जहन्नम में जाकर अपनी अबदी सजा भुगतेगा। बच्चों, यहूदा ने अपने आप को लटका लिया, मगर ये तो महज जिस्म की मौत है। उसकी रूह से गुनाह का बोझ तो नहीं उतरा। चुनांचे मरने के बाद उसे जहन्नुम में जाना ही था। यीशु ने आखिरी फसा के दौरान इशारा दे दिया था कि यहूदा जहन्नुम की अबदी आग में जलेगा। और अब वो बात भी पूरी हो गई। मगर यीशु को ये अंजाम पसंद नहीं था। यीशु तो चाहता था यहूदा उसके सामने तौबा कर ले और मुआफी का तलबगार हो, ताकि उसकी रूह तो बच पाए। बच्चों, यीशु जिस तरह शागिर्दों की कमजोरियां जानता था, उसी तरह हमारी कमजोरियों से भी खूब वाकिफ है। यीशु को मालूम था हमारी ही तरह शागिर्द भी लातादाद बुरी आदतों और अकड़ मजाजी का शिकार हैं। हमारी बिगड़ी ख्वाहिशें, यानी मतलब परस्ती, गरूर, दूसरों पर हुक्म चलाने की हसरत, यीशु सब जानता है। इसीलिए यीशु ने हमारी खातिर जान दी, ताकि जो कोई उसकी पनाह में आना चाहे आ जाए। उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे और खुद को यीशु के हवाला करके हर कोई कुव्वत पाएगा। बच्चों, यीशु शागिर्दों की तरफ से मायूस नहीं था और ना ही किसी भी शख्स की तरफ से कभी मायूस हुआ, क्योंकि वो अपने ताकत व कुदरत वाले हाथ से खूब वाकिफ है और सबकी मदद कर सकता है। चुनांचे बच्चों, इस बात की परवाह ना करें कि आप कितने बदमिजाज हो गए हैं, अपनी ही निगाहों में कितने बुरे और हकीर हो गए हैं।
आपके करने का काम ये है कि नजरें झुकाए आजिजी से। यसू के पास चले आए। वो आपकी सब उलझने और परेशानियां जानता है। आपका मुंतजर है कि आएं और उसकी बरकतों और अनायतों की बरसात पाएं। आएं, दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, यीशु को सलीब पर चढ़ा दिए जाने की घड़ियां सर पे आन पहुंची। वो दर्दो करब के अजियतनाक मरहले चुपचाप झेलता गया, मगर ऐसे में भी सोचों का मरकज शागिर्द ही रहे और लोग जो उसकी बातें गौर से सुनते और माना करते। अगरचे यीशु ने देखा भी शागिर्द उसे तरह छोड़कर भाग उठे, वो ना तो खफा हुआ और ना ही मायूस व गमज़दा। शागिर्दों के तरके ताल्लुक का शिकवा भी नहीं किया। प्यारे बाप, यीशु ने शागिर्दों के लिए दुआ की कि वो एक हो जाएं। अगरचे ये बात पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आई, मगर ये तो मैं जानता हूँ कि अगर मजे की रोटी बनानी हो तो हमें घी, नमक और आटा मिलाकर खूब गूंदना पड़ता है, तब ही रोटी से खूब मजे की खुशबू आएगी। प्यारे बाप, मेरा ख्याल है आप और यीशु, मैं और सब ईमानदार बाहर इकट्ठे हो जाएं। सब इंसान आपस की मोहब्बत सीखेंगे, हर कोई हर किसी की मदद करेगा और यीशु की तरह दूसरों का ख्याल रखेगा। जब हम इकट्ठे बाइबल पढ़ें, तेरी इबादत करें, तो ऐसे में अपने लोगों की महफिलों में मोहब्बत की महक रचा दे। प्यारे बाप, हमारी मदद फरमा, हमारे दिलों का गोशा गोशा महका दे। अपने साथ यीशु और रूहुल कुदस को लेकर हमारी जिंदगी में आ जा। ऐ आसमानी बाप, मैं तो अक्सर ही तुर्रम खान बना रहता हूँ। अकड़ और गरूर की राहों से मुझे बचा ले, तेरी बरकतों से कहीं महरूम ना रह जाऊं। मुझ पर रहम कर और मेरी मदद फरमा कि तू ही मेरा बाप है। मुझे अपनी आगोश अपनी बाहों में थाम ले, मुझे थाम ले। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम में, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यूहन्ना 15 बाब 12 आयत।